Now here we try to understand about the budget. So here we are shifting all together, and this is the, you can say, kind of a last major segment in the topic of legislature. After that, very smaller topics like, role of parliament and privileges, etc. So that would be like one video per topic. So here we'll have couple of videos for the topic of budget. So that comes under your heading of legislative procedure, which we were doing earlier, but now it includes the financial matters. So अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे तो you will see, you will have a segment in the constitution itself wherein it reads as procedure in the financial matters and talks about the budget. So we'll have the section on the constitutional provisions of budget and the charged expenditure. Now, firstly, पार्लियामेंट में बजट का प्रोसेस कैसे होता है, हमें पता है कि होता है, बट क्या होता है, कैसे होता है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डू नॉट एक्चुअली यूज़ द टर्म बजट. ठीक है, ये जो जनरल टर्म है बजट को हम यूज़ करते हैं फॉर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, बट द टर्म विच इज़ यूज टू रेफर दिस बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, कि साल भर का जो भी फिनेंशियल मैटर्स का स्टेटमेंट है, ठीक है, अब वो स्टेटमेंट में क्या क्या होता है अभी हम देखेंगे. दैट इज़ कवर्ड अंडर आर्टिकल 112. So as I just have shown you, this is what is we are talking about. So article 112, annual financial statement, and you need to remember the term budget is nowhere used in the constitution, but the reference is same. So what is this annual financial statement? What is this statement all about? The statement is the statement of estimated receipts. Receipts मतलब कितना पैसा आया, ठीक है, the money which came, receipt, receive हुआ, and the expenditure जो आपका खर्च हुआ, ठीक है, of government of India in a financial year. And how do we count a financial year, or what is a financial year? Which starts from 1st of April and goes till the 31st of March of next year. So please remember, जो हम यूज़ करते हैं 1st of January से 31st of December, वो आपका कैलेंडर ईयर है, राइट, बट द फाइनेंशियल ईयर इज़ काउंटेड फ्रॉम 1st of April. तो बजट का जो लेखा जोखा होता है, द रिसीट एंड द एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग, दैट इज़ एक्चुअली काउंटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर. There are certain other elements in the budget also. For example, estimation of the revenue and capital receipts. अच्छा, ये सब इकोनॉमिक्स में मेजरली यू विल डील की कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है. ठीक है, अभी के लिए ब्रॉडली हम उसको कवर करेंगे. वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, then details of actual revenue and expenditure of the closing financial year, and reasons for any deficit or surplus in that year, and economic and financial policy of the coming year. I'll explain it, don't worry. Firstly, it is about the revenue and capital receipts. So see, अगर हम broadly समझने की कोशिश करें, so if I just have to broadly tell you, you will have the receipts, which means जो पैसा आप receive कर रहे हो उसमें you will have the revenue also and capital receipts also. Similarly, for expenditure, you will have revenue and capital. ठीक है, the detailed components you will study in economics, and it needs to be done thoroughly because prelims में they ask you the components. But broadly, if I have to tell you, so जब हम revenue की बात करते हैं तो it is about the normal day to day transactions जो trading होती है, उससे जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है, ठीक है, वो काउंट होता है रेवेन्यू में. कैपिटल रिसीट और एक्सपेंडिचर वुड बी अबाउट जब आप किसी लॉन्ग टर्म असेट को खरीद रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ अबाउट द लॉन्ग टर्म. दिस इज़ अबाउट द शॉर्ट टर्म. इन वेरी शॉर्ट मैनर आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस. सो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरीके के रिसीट्स जो हैं वो बजट में होते हैं. देन वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, उस रेवेन्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसका तरीका. एक्सपेंडिचर जो होगा उसका एस्टीमेट, अप्रॉक्सीमेट आइडिया. जो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर है जो ख़त्म हो गया उसकी भी जो डिटेल्स हैं. सी एट टाइम्स क्या होता है, व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, द ईयर अहेड, वी विल हैव द एस्टीमेट. ठीक है, वी विल हैव द एस्टीमेट कि ये हमने अप्रॉक्सीमेट लगाया है. जैसे आप घर का बजट अगर रखते हो अपने लिए, मान लीजिए आपके पास जो भी पैसे हैं, सेविंग्स हैं या पॉकेट मनी है, जो भी है, एंड यू विल सी कि ठीक है मेरा इतना 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 खर्चा इस पर्टिकुलर मैटर में होगा. तो एक साल शुरू होने से पहले आपने मान लीजिए एक रफ एस्टीमेट रखा कि मुझे इतना खर्च करना है या मेरा इतना खर्च होगा. बट आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ दैट ईयर एग्जैक्ट खर्च आपका कितना होता है
द एग्जैक्ट अमाउंट दैट यू हैव स्पेंड, और लेट्स से आपको कहीं से आया तो उसका ओवरऑल जो अमाउंट का स्टेटमेंट है, दैट विल बी द एक्चुअल डिटेल्स. सो देयरफॉर जो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें एक्चुअल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कितना रहा वो भी हमें देखना है, कितना हमने लास्ट टाइम एस्टिमेट करा था उसके हिसाब से ज़्यादा है या कम है वो देखना है, और अगर कुछ कमी है या सरप्लस है, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट एग्जैक्ट हाउ मच ऑफ यू विल एस्टिमेट एग्जैक्टली वो ही एक्चुअल भी होगा, वो तो नहीं होगा. दे विल ईदर बी डेफिसिट, या तो कम मतलब उससे ज़्यादा अमाउंट खर्च हो जाएगा तो आपके पास डेफिसिट हो जाएगा, या तो सरप्लस हो जाएगा. बट उसका रीजंस भी हमें समझना ज़रूरी है. एंड देन कमिंग ईयर में जो भी पॉलिसीज़ रहेंगी इकोनॉमिक या फिनेंशियल मैटर्स में, वो भी सब बजट कवर करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक कमिटी थी, जैसे एक्वर्थ कमिटी रिपोर्ट 1921. पहले क्या होता था कि जो रेलवे बजट है उसको इस कमिटी के रिपोर्ट के बाद सेपरेट कर दिया गया जनरल बजट से, ठीक है, 1924 में. लेकिन 2017, तो पहले हमारा दोनों बजट जो है वो अलग होता था, रेलवे अलग और नॉर्मल बजट अलग. 2017 में यूनियन गवर्नमेंट ने जनरल बजट एंड रेलवे बजट को मर्ज कर दिया. सो नाउ वी ओनली हैव द यूनियन बजट विच इटसेल्फ इंक्लूड्स द रेलवे कॉम्पोनेंट ऑल्सो. ठीक है, ओके. कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बजट को लेके, दैट विथ रिस्पेक्ट टू एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर की हम बात करेंगे. एंड यू नो व्हाट इज़ द फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च. हर फाइनेंशियल ईयर में प्रेसिडेंट हैज़ टू ले अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर बोथ द हाउसेस. ठीक है, मतलब वो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है, ऑफकोर्स फिनेंस मिनिस्टर को वो स्टेटमेंट डालना होता है, मतलब वो सबके सामने फिनेंस मिनिस्टर का काम है ये. लेकिन जो आपका अथॉरिटेटिव पोजीशन है वो प्रेसिडेंट का है दोनों हाउसेस के सामने. अच्छा, बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के, विदाउट द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड, कि हमें और ग्रांट दे दो, कोई भी ये नहीं मांगेगा. उसका एक अलग प्रोसेस होता है, क्या होता है हम आगे देखेंगे. बट विदाउट प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन दिस कैन नॉट बी डन. नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाई लॉ. तो अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ करना है, जिसको हम अप्रोप्रिएशन बोलते हैं, तो उसके लिए एक अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, तो वो लीगल प्रोसीजर से ही आपको करना है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी विल सी. अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बोलता है. ओके, नेक्स्ट इज मनी बिल की जहाँ तक बात है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हम जानते हैं. एंड इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, ये हमें पता है. नो टैक्स शैल बी लिवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. अब जैसे जीएसटी आया, तो जीएसटी के लिए लॉ है ना, कोई भी टैक्स अगर आपको लगाना है, ठीक है, या कलेक्ट करना है, तो वो लीगल तरीके से ही होगा. पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट. तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है या अबॉलिश कर सकती है, बट टैक्स को इंक्रीज नहीं कर सकती. कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिफाइंड द रिलेटिव रोल्स और पोजिशन ऑफ बोथ द हाउसेस. राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों का क्या रोल होगा विथ रिस्पेक्ट टू बजट इनैक्टमेंट, वो सब ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है. फॉर एग्जाम्पल, मनी बिल और एनी फाइनेंशियल बिल विच इज़ रिलेटेड टू टैक्सेशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा. वी नो अबाउट इट. देन राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट. ये जो डिमांड फॉर ग्रांट की बात की थी ना, इसका डिटेल अगेन एज आई सेड विल डू इट लेटर. बट जब डिमांड होगा, ठीक है, किस चीज़ का डिमांड, कि हमें ग्रांट करो, कुछ और पैसा हमको चाहिए, वो हमें ग्रांट करो, उस चीज़ के लिए वोटिंग पावर इज़ नॉट विथ राज्यसभा. राज्यसभा ऑल्सो व्हेन इट रिटर्न्स द फाइनेंशियल बिल और द मनी बिल टू लोकसभा, वो उनको 14 दिन के ही अंदर करना है. एंड लोकसभा कैन ईदर एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ राज्यसभा और कैन रिजेक्ट द रिकमेंडेशन. तो मतलब बाइंडिंग नहीं है, ये जो भी रिटर्न करेंगे विथ रिकमेंडेशन वो बाइंडिंग नहीं होगा ऑन लोकसभा. ये सब वैसे हमने करा हुआ है, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू. एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स इन बजट हैज़ टू बी शोन सेपरेटली. तो अब ये क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जो भी एक्सपेंडिचर चार्ज हो रहा है, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यू माइट गेट कन्फ्यूज बट यू डू नॉट नीड टू. अभी हम इसको डिटेल में आगे समझेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रिलेटिंग टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. एंड द बजट में ये चीज़ साफ साफ है कि ये दोनों एक्सपेंडिचर एस्टिमेट को आपको सेपरेटली शो करना है. एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया
तो चार्ज ऑन का क्या मतलब है, एन एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। बजट शैल डिस्टिंग्विश द एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू अकाउंट है जिसमें जो लॉन्ग टर्म चीज़ों को नहीं डील करता है, मतलब कैपिटल अकाउंट नहीं है, वो रेवेन्यू अकाउंट है, वो दूसरे एक्सपेंडिचर से अलग ही हमको शो करना है, वो डिस्टिंग्विश बजट को करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। डू यू रिमेंबर व्हेन वी वर सीइंग अबाउट द सैलरीज, लेट्स से, अच्छा जुडिशरी तो हमने अभी नहीं करा है, बट बाकी जगह पर हमने करा, हमने जब प्रेसिडेंट वगैरह की बात करी थी, बहुत सारे जगह पे हमने ये चीज़ देखा था कि कुछ सैलरीज जो है वो दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, विच मीन्स दे आर नॉट वोटेबल बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट उसको वोट करके चेंज नहीं करती है। ठीक है, तो वही चीज़ बात हो रही है कि दे आर नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, हाउएवर इट कैन बी डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट। डिस्कशन हो सकता है बट उस पर कोई वोटिंग नहीं होगी, विच मीन्स फाइनल चेंजेस नहीं होंगे। अब बात आती है चार्ज एक्सपेंडिचर की, है ना, यही जो दो टर्म्स हमने बात करी। सो बजट टॉक्स अबाउट टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, वन इज चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अनदर इज मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फर्स्टली जो मेजर डिस्टिंक्शन है वो दोनों के बीच में सिर्फ वही है दैट द चार्ज्ड एक्सपेंडिचर अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया is non-votable by parliament and here only discussion on that part can take place, but the expenditure made, जो खर्चे वहाँ से निकाले जाएंगे, they are voted by the parliament. So now the question is कि फिर ये जो charged expenditure है जो कि already permitted होता है and it is not votable, वो क्या है? So you have a list in the book which we'll just see. These are those charged expenditure. ठीक है, तो फर्स्टली तो आपको ये समझना है कि ये क्या है, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या क्या आता है, इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस, हमने देखा हुआ है। सैलरीज अलाउंसेज ऑफ चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर चेयरमैन और डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, हमने देखा हुआ है। Salaries, allowances and pensions of the judges of the Supreme Court, because we have not yet done judiciary, but you will remember this. Then pensions of the judges of High Court, salary allowances, pension of the CAG, Comptroller and Auditor General of India, salaries, allowances, pension of chairman and members of UPSC, administrative expense of the Supreme Court, office of CNAG, Union Public Service Commission, including the salary allowance, pension and of the person serving in these office. द डेट चार्जेस फॉर विच गवर्नमेंट इज़ लायबल। देखिए ये सब तो कुछ कुछ स्पेसिफिक ऑफिसर्स से रिलेटेड हैं विच यू विल हैव टू रिमेंबर, लाइक यू नो प्रेसिडेंट का, देन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, देन जजेस, ठीक है, देन यूपीएससी के मेंबर्स, CNAG की, तो वो सब आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट द डेट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट इज़ लायबल, गवर्नमेंट ने कोई भी मान लीजिए उधारी ली हुई है, डेट चार्जेस हैं जिसके लिए सरकार लायबल है, कोई भी इंटरेस्ट हो गया, कोई भी सिंकिंग फंड चार्ज हो गया, रिडेम्पशन चार्ज हो गया, ये सब अलग अलग तरह के चार्जेस हैं, अगर उसके लिए सरकार रिलायबल है, ठीक है। एंड एनी अदर एक्सपेंडिचर अबाउट लोन रेजिंग या यू नो हाउ डू यू हैव द सर्विस एंड रिडेम्पशन ऑफ डेट, कोई भी ऐसा चार्ज जो कि जिसके लिए सरकार लायबल है, दैट इज़ ऑल्सो चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड ऑफ अ कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये सब का मतलब एक तरीके से जजमेंट ही होता है, जजमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स होता है इन लीगल टर्म्स विच वी आर नॉट गोइंग इन टू द डिटेल। आप ऑर्डर कह सकते हो, डिक्री अवार्ड इज समथिंग लाइक यू नो फाइनल जो डिसीजन लिया गया, तो उसके लिए भी अगर किसी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सब भी यहीं से आएगा। एंड एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने अगर कुछ भी डिक्लेयर कर दिया कि ये सारे एक्सपेंडिचर आर ऑल्सो गोइंग टू बी द चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, सो दे विल नॉट बी वोटेड बाय द पार्लियामेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी खर्च होना है नॉर्मल, अपना जो सरकार को खर्च की ज़रूरत है वो भी इसी फंड से निकलता है, सो दैट इज़ वोटेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। इसका डिटेल हम आगे करेंगे, विल हैव द टाइप्स ऑफ फंड्स इन अनदर वीडियो, तो वहाँ पे हम 3 तरह के फंड्स देखेंगे, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट, ठीक है, वहाँ हम देखेंगे। बट अभी के लिए दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। एंड चार्ज्ड में क्या क्या आता है ये लिस्ट है जो आपको याद रखनी है, बिकॉज यू नेवर नो, प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। So in the next video, we'll see the stages in the enactment of budget. Okay, hope you guys understood about the basic things related to budget. You will have to remember this. I'll quickly show you the article also.
it says annual financial statement. These are the same things which I have written in the notes, like the president in respect of every financial year before both the houses, ठीक है, एस्टिमेटेड रिसीट देंगे, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे, आपको सेपरेटली दिखाना होगा जो कि एक्सपेंडिचर कहाँ से आ रहा है, चार्ज्ड है और बाकी एक्सपेंडिचर भी है, फिर आपको डिस्टिंग्विश करना होगा रेवेन्यू अकाउंट को दूसरे एक्सपेंडिचर से. एवरीथिंग आई हैव रिटन देयर. सो यहीं पे ये चीज़ दी गई है, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी द वन विच इज़ चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड. तो ये जो लिस्ट अभी आपको बुक में दिखाई मैंने, द लिस्ट विच आई हैव जस्ट शोन यू, यू विल सी कि ये चीज़ें यहीं लिखी हुई हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब कुछ लिखा हुआ है, पेंशन, सैलरी, अलाउंस एट्सेट्रा. तो यही सारी चीज़ें हैं जो बजट की डिटेल्स में दी गई हैं. ठीक है, बाकी ये सब क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, ग्रांट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वी विल सी. दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डन, लाइक मच ऑफ द एस्टिमेट्स जो हैं वो ऑलरेडी चार्ज हैं, दे आर नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, बट दे कैन बी डिस्कस्ड. उसके अलावा जो है बाकी कुछ डिमांड्स होते हैं, तो वो क्या होंगे वो हम आगे समझेंगे. एंड नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो ये सारी चीज़ें भी हमने की हुई हैं. अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, दैट कम्स अंडर वन ऑफ द प्रोसीजर, तो वो हम आगे समझेंगे. ग्रांट्स क्या होते हैं वो हम आगे समझेंगे. एंड देन ये सारी चीज़ें भी ग्रांट से ही रिलेटेड है, वो क्या होती हैं हम आगे समझेंगे. ठीक है, फिनेंशियल बिल हम कर चुके हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर हम आगे देख लेंगे जब वो टॉपिक आएगा. एंड दीज आर द अदर थिंग्स विच वी हैव, लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दैट जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, और फिर हम जुडिशरी पे आ जाएंगे. सो बेसिकली वी हैव डन मोर और लेस, जस्ट द लास्ट सेगमेंट, स्मॉलर थिंग्स आर लेफ्ट. ठीक है, सो ये हो गया आपका, एंड दिस आर्टिकल ऑल्सो इज डन. So I'll see you guys in the next video and we'll continue from the stages in the enactment of budget. See you, bye bye, take care.